most jump squats in 1 minute. That was for 56 or 57, I guess. I'm not sure. The record which I broke, I did 59 jump squat. मेंटल पावर है, ये सबसे बड़ी चीज है एंड इसके बिहाफ पे आप कुछ भी कर सकते हो। एंड जो सबसे बड़ी बात है कि मेरे को सुनने में मिली कि सुखना लेक में भाई स्विमिंग हो रही है, तो वो एक बहुत बड़ी चीज थी कि जिस लेक में हम बोटिंग करते हैं, जिस लेक में टूरिस्ट आते हैं या हम घूमने आते हैं, उस लेक में स्विमिंग। ट्रायथलॉन में क्या होता है कि जो थर्ड लेग है वो आपकी रनिंग की होती है एंड जब आपकी वो स्टार्ट होती है तो ऑब्वियसली अगर वो सुबह 6 बजे स्टार्ट हो रही है फर्स्ट लेग, तो थर्ड लेग तक पहुंचते पहुंचते दोपहर हो ही जाना है एंड यू शुड बी रेडी फॉर द गेटिंग बर्न्ट इन द सन अपार्ट। एंड इसमें अगर मैं अब स्लो हुआ तो आई कैन लूज इट, एक अपॉर्चुनिटी मिली है, तो उसके बाद एक तो फटीक ज्यादा, एक धूप ज्यादा, ऊपर से वो मेंटल प्रेशर। A very good evening, good afternoon, and a very good morning to all the audience and viewers. Today we have a very special guest with us. Someone who had a record on his name in the year 2015 by a very small age of 17 years. Did he stop there? No, he did not. He went on to achieve more records and more targets in the coming years. What comes after Limca Book of Records? Guinness. In the very next year, he attempted for the Guinness Book of World Records. In the year 2015, he was the fastest quadruped running champion with 50-meter mark. Quadruped, we'll get to know more about what the event was and what the race was. In 2016, he had the record of the most jump squats, beating somebody from US by the name of Jack, and the record came onto his name in the year 2017. After all those records and all those titles to his name, he had a very prestigious title by his name, another which you very well know as a Toughman. We welcome Gaurav Deep to the session and our episode. Hello and very warm welcome to Gaurav Deep. How are you today? First of all, good evening, everyone. I'm very good, doing good, and I hope the our viewers and audience are also doing good. Absolutely. The only thing that they are missing is the information that they would want to know. 2015, one record, and I did not mention one of the records in 2016, 2015 that you had, which was for cycling. You had another one in 2017, got named after you in 2007. 2016, you had the Guinness Book of World Record, and 2017. So these records that you had, did you start getting records in your school times as well? School mein, running, racing, sports. How was it? It started back when I was in hostel, so it was not, it was just the short races like sprints, which you obviously participate in your annual meets and football competitions. So it started back there, but it was not, up to that extent. It was just to, to get into the curricular activities and to get good grades. But yes, the spark which ignited, that was obviously in the school time. And after that I started exploring myself and my capabilities, where in which field I can make some good marks. So like this it went on step by step, and I ended up attempting a Limca Book of Records. So that was like you have already said, in quadruped running. So I did that, and just added see, when you are in getting into some field, whether it's a business, it's whether or it's a sports, get greedy. You don't stop at one point. You always get on exploring other things, get on exploring your angles, other things. So that I did a SR, super endoneer, which is in cycling. I would just want you to enlighten the audience. What is a quadruped running? इसका रिकॉर्ड है एंड अगर हम आपके सिर्फ रिकॉर्ड्स की बात करें और जो आपके बैकग्राउंड में मेडल्स और रिकॉर्ड्स हैं, काफी लंबा सेशन होने वाला। So वो quadruped running एक ऐसी चीज है जिसमें we use our hands and legs to run a certain distance. So that was there's a guy named Kenichi Ito. So he hails from Japan, and 2012 या 13 में उसका रिकॉर्ड मैंने गिनीज बुक में देखा था। मतलब I watched a video in which it was like official record in Guinness book. So I tried it, but 100 meters was a very much distance, and so I applied for a 50 meters quadruped running, and
the book, the Limca book, accepted it. And after that, I attempted the record, and I did it under 10 seconds. It was 9,56 seconds, I guess. It is exactly the time of Usain Bolt's world record. That is 9 7. But that is 100 meters. Yeah, that is for 100 meters, and this is for 50 meters. But yes, I was very satisfied that I luckily got the same numbers, and after that, it got registered in the Limca book. As you mentioned, Gaurav Deep, you were very much active in sports. अब बहुत ज़्यादा हॉस्टल लाइफ में भी आपने काफ़ी स्पोर्ट्स एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करी हैं एंड जिसका आपको एक रिकॉर्ड भी 2015 में मिल गया which was into track and field events, running, water bed running, sprints, races. 2015 में ही you went on to do another event of cycling. Yes, so Shivam, like I have already said कि एक greed होती है, वो बढ़ जाती है आप जब भी कुछ ना कुछ करते हो. So it's like when you get into this, there is a never-ending barrier. You just keep on doing something until and unless there is some boundary or an obstacle. So अभी तक वो आया नहीं था, and that's why I just discovered another record. I just came through, like you have already said, of Jack's record. That is for jump squats, most jump squats in 1 minute. That was for 56 or 57, I guess. I'm not sure. And the record which I broke, I did 59 jump squats, and that was not exactly a 1 minute, but it was 58 seconds. So I had 2 seconds more to go, but luckily I surpassed his number just in 58 seconds only. That's रिकॉर्ड आ it. गया So, ठीक है 1 मिनट में 58 सेकंड में रिकॉर्ड आना चाहिए और see, दैट gee, टू एट अ वेरी exactly. यंग एज 2016 में you were merely 18 years old. Yes, yes. So, And before yeah, going on to Guineas, you achieved another title a year before. That is yes, for SR title. yes, that is उसके for बारे a में super बताइए engineer. थोड़ा. सो एसआर शिवम एक सीरीज होती है जो कि जिसमें हमें 200 400 300 और 600 मतलब ये 4 इवेंट्स करने होते हैं विद इन 1 कैलेंडर ईयर. एंड इस 4 इवेंट्स जो 4 ये साइकिलिंग डिस्टेंसेस है, इसमें आपको एक सर्टेन टाइम मिलता है, एंड इसमें जो भी डिस्टेंस बंदा कर रहा है, बंदा उससे ज्यादा ही करता है, बिकॉज बहुत सारा मतलब आपको आप कभी भी एक स्टेट क्रॉस कर रहे हो, कभी भी एक सिटी क्रॉस कर रहे हो, होता है कि काफी कंफ्यूजन होती है. तो 15-20 किलोमीटर इज वन थिंग यू शुड एड अप, एंड अनदर फैक्टर इज लाइक स्लीप फैक्टर इज वेरी मच अ थिंग इन 600 किलोमीटर. नींद बहुत आती है, एंड उसमें मेरे साथ तो कुछ ऐसा हुआ कि 600 किलोमीटर के स्टार्टिंग में आई हैड वन गाय हु इज नाउ एवरेस्टर, एंड ही हैड कवर्ड 1200 किलोमीटर रेस. एंड फर्स्ट 100 to 200 किलोमीटर ही डिड वेरी फास्ट, एंड लकीली मैं उसके साथ था, मेरा बहुत अच्छा गया. एंड उसके बाद आफ्टर 300 किलोमीटर थोड़ा अंधेरा होना स्टार्ट हो गया, तो आई जस्ट रोड 200 किलोमीटर इन द डार्क अलोन, बिकॉज बाकी सारे पीछे रह गए थे, एंड एक स्टेट भी दूसरा था. आई डिड दैट इन गुजरात. सो उसमें फिजिकल जो एग्जर्शन था वो तो है ही एक फैक्टर. जो मेंटल एग्जर्शन होता है कि यार अंधेरे में तुम चला रहे हो, कहीं कोई पीछे से आ गया, कुछ और मतलब एक होता है, एंड दैट वाज द मेन थिंग. मतलब फिजिकल से ज्यादा वो मेंटल एग्जर्शन ज्यादा था. बट किसी तरीके से वो रात कटी, एंड आई डिड दैट डिस्टेंस, एंड इन द मॉर्निंग in the afternoon, I guess the 630 kilometers were completed, and the thing the वो सारा खत्म हो चुका था, and I was quite happy कि हाँ चलो जो start किया था वो हो गया. In those 40 hours, how much time आपने सोने के लिए रखा, ब्रेक्स के लिए रखा, आपने उस चीज को कैसे मैनेज करा? Because 40 hours is almost your more than 1.5 day. Yes, तो इस 40 hours में आई गेस मेरा जो completion टाइम था वो अराउंड 35 hours ही था. 5 घंटे पहले ही कर दिया था. एंड उस 4-5 30 hours 28 to 30 मेरा राइडिंग टाइम था, और 4 to 6 hours मैक्सिमम वो रेस्टिंग टाइम था, जिसमें से 2 रेस्ट थे. एक 1.5-2 घंटे का था, और दूसरा ज्यादा मेजर वाला था, वो 3-4 घंटे का था. तो उसमें ज्यादा नैप नहीं लगा सका, बिकॉज मेरी स्पीड कांस्टेंट रहती है, बहुत ज्यादा स्पीड नहीं थी. मैं एंडोरेंस का ये होता है कि आप कछुए के चाल चलो लेकिन चलते रहो. तो उसमें इसलिए स्लीप का टाइम जो था वो कम था, एंड मेरे को ये था कि मैं जल्दी कंप्लीट करूं, बिकॉज कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, पंचर्स वी गेट, साइकिल breakage we get, anything could happen at any point of time. It's just that you have to be very mentally strong at that time, because उसमें पंचर हुआ था, उसमें आधा पौना घंटा खराब किया.
कुछ हमने एक्स्ट्रा डिस्टेंस किया उसमें खराब किया, और जब आप एक्स्ट्रा डिस्टेंस करते हो और आपको पता लगता है कि यार मैंने 15-20 किलोमीटर एक्स्ट्रा कर दिए, वो 1 घंटा एक्स्ट्रा हो गया, तो वो सब चीज़ें ऐड ऑन होती है आपके एक्सर्शन में। बट लकीली ये अच्छी प्रैक्टिस थी एंड अच्छा तरीके से हो गया वो। एंड व्हेन यू आर प्लानिंग फॉर सच रेसेस, जब आप इन रेसेस के लिए अटेम्प्ट कर रहे होते हो, तो इट इज नॉट द नॉर्मल रूटीन दैट यू टेक। एक नॉर्मल इक्विपमेंट भी नहीं होता, आपको सारी चीज अपने साथ कैरी करनी होती है। एंड आई वेरी मच अंडरस्टैंड कि साइकिल भी जो होती है वो नॉर्मल नहीं होती है। जी, 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 जी। उसमें एक स्पेशल रोड बाइक्स यूज होती हैं, लेकिन लाइक बैक इन 2014 15 और अप टू 16 हमारे यहाँ पे इतना ट्रेंड नहीं था। मतलब वहाँ उस टाइम पे नॉर्मल बाइक्स होती थी, लेकिन मेरे पास मतलब एक दैट वाज ऑफ डिकैथलॉन, आई गेस बिटवीन 500 थी। तो वो बहुत ही बेसिक बाइक है, बिकॉज आज के टाइम पे तो कार्बन फ्रेम्स आ चुके हैं, कार्बन व्हील्स आ चुके हैं, बहुत ज्यादा अपग्रेड्स आ चुके हैं। तो उस टाइम पे वही एक बहुत बड़ी चीज थी, बिकॉज यू आर स्टार्टिंग आउट एंड दैट वाज ओनली थिंग व्हिच इज अवेलेबल इन द मार्केट। अगर अगर आप पैशनेटली कुछ कर रहे हो, अगर आप प्रोफेशनली कर रहे हो फिर अलग बात है। तो उस टाइम पे इक्विपमेंट्स भी जरूर हेल्प आउट करते हैं। मतलब वो नॉर्मल साइकिल तो नहीं था ऑब्वियसली, लेकिन इतना भी एडवांस नहीं था, क्योंकि अभी जो साइकिल्स यूज हो रहे हैं उनका स्टैंडर्ड बहुत हाई है, एंड उसमें जो एक्सर्शन होती है वो बाकियों से बहुत ज्यादा नॉर्मलाइज्ड रहती है। रीजन बीइंग कि उसमें सब चीजें एडवांस्ड है, लाइट वेट है। तो वो भी एक चैलेंज उस टाइम पे नहीं था मेरे लिए साइकिल का कुछ भी, बिकॉज साइकिल उस टाइम पे अच्छा खासा था, एंड इट वाज ओनली थिंग कि यू शुड बी कीपिंग योरसेल्फ मूविंग ऑल द टाइम। सो एंड दूसरी चीज ये होती है कि साइकिल चाहे आपके पास बहुत ही बढ़िया है, लेकिन उसमें अगर आपको डैमेज आ जाता है फिर प्रॉब्लम हो जाता है, बिकॉज कार्बन जो बाइक्स होते हैं या कार्बन व्हील्स होते हैं वो उनका रिपेयर मौके पे नहीं होता। लाइक इफ समथिंग हैपेंस व्हाइल यू आर इन द रेस, तो उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं। लेकिन विद मी दैट वाज अ लकी थिंग, जस्ट अ फ्यू लाइक 1 or 2 पंक्चर्स, अदरवाइज एवरीथिंग वाज गुड। एंड जैसा आपने बताया काफी स्टैंडर्ड हाई हो गया है, कॉस्ट भी तो काफी हाई हो गई होगी। जी बिल्कुल, कॉस्ट तो अब लाइक एक अच्छा रोड बाइक विद कार्बन व्हील्स अभी अप्रोक्सीमेटली 1-1.5 लाख तो मिनिमम अमाउंट है, एंड इवन इट गोज अप टू 5 lakhs 7 lakhs डिपेंडिंग अपॉन योर पॉकेट, डिपेंडिंग अपॉन योर प्रोफेशन, एंड डिपेंडिंग अबाउट हाउ पैशनेट you are. So all these things add on, and yes, but the most to me and to most of the people who are in sports, like from a young age, उनके उनका एक हमारे कोचेस ने या हमारे ट्यूटर्स ने या मेंटर्स ने हमें एक चीज सिखाई है कि जो आपकी मेंटल पावर है, ये सबसे बड़ी चीज है, एंड इसके बिहाफ पे आप कुछ भी कर सकते हो। साइकिल्स का भी एक रोल होता है, लेकिन वो उस लेवल पे होता है जब आप बहुत प्रोफेशनल चले जाते हो। नॉर्मली जैसे आयरन मैन है, एंड काफी इवेंट्स हैं, और इसमें जैसे एसआर है, ये एक नॉर्मल साइकिल्स पे आप कर सकते हो। इफ यू आर इन गुड शेप, इफ यू आर प्रैक्टिसिंग गुड, इफ यू आर ईटिंग गुड, तो दैट इज क्वाइट डूएबल। एंड साइकिल्स का तो अभी कुछ भी अंत नहीं है लेवल का। It starts from 1 lakh and 1.5 lakh. That is the minimum range you can say, and it goes up to 10, 12, whatever the number you say. So yeah, So that's it. after 2016 getting your recorded Guinness Book of World Records, getting your name recorded in that, how did you Yes. start this Toughman journey and achieving the Toughman title? Yes, so the Toughman journey came a bit later. Before that, after 2016, in 2017, I did the basic mountaineering course. I did some, courses in mountaineering as well, basic and advanced. In 17, I did a basic mountaineering course. तो उसमें it's a course for 30 days. उसमें आपको टेक्निक सिखाते हैं माउंटेनियरिंग की, ट्रैकिंग की। तो उसमें हमें एक एडम्स डे मिलता है, दैट मीन्स कि एक फ्री दिन होता है जिसमें आप अपना कर सकते हो कुछ भी। So in that day, we were cycling from Manali to Rotang, and I met some guy. I met two three guys, and उनका क्या था कि they were regularly doing some stuff, and मेरे ख्याल से उन्होंने पहले भी टफमैन की रेसेस की हुई थी। उस टाइम पे we planned on to going in this lay, and we planned on to doing this race. At that time, there was event of Toughman, which was Toughman Ladakh Duathlon, and so that is what after, like, I guess it was in 2017 September only. तो कोर्स हमारा खत्म हुआ जुलाई में, एंड इट वाज अगस्त, एंड इन सितंबर वी जस्ट वेंट टू ले, एंड उस पे हमने वो इवेंट किया, बड़ा मजेदार इवेंट था।
एंड सबसे बड़ा चैलेंज हमें ये आया कि हमने उसमें थोड़ा लेट ले पहुंचे, जिसके लिए मतलब हमारे पास एक्लेमेटाइजेशन के लिए टाइम नहीं था, एंड थोड़ा तबीयत भी खराब थी, लेकिन द रेस वाज वेरी गुड, चोगलमर सर. So that was the starting point of the race, and we did that, and it was again a wonderful journey. And after that, I did the advanced course in 2018, advanced mountaineering course. How did you get to know about the Stuffman Try 113? After having done with this Ladakh Duathlon, I was following the this Facebook page. उस टाइम पे फेसबुक ही ज्यादा था, इनफैक्ट हमें फोटोज भी फेसबुक से मिली थी. तो उसके बाद काफी इवेंट्स रहे हैं मेरे, लाइक मैराथन्स हैं, एंड टफमैन ट्राई वाला इवेंट था. ये बहुत टाइम से मैं वेट कर ही रहा था इसका. रीजन बीइंग क्योंकि मैंने जो ट्रायथलॉन थी आयरन मैन 70.3 वो एक फिल करी हुई थी, एंड आई जस्ट वांटेड टू हैव अ चेक ऑन माई सेल्फ. एंड सेकेंडली आई वांटेड अ रेस नियर बाय मी, सो चंडीगढ़ वाज अ गुड ऑप्शन. एंड जो सबसे बड़ी बात है कि मेरे को सुनने में मिली कि सुखना लेक में भाई स्विमिंग हो रही है, तो वो एक बहुत बड़ी चीज थी, बिकॉज सुखना लेक में पिछले 8-10 साल से स्विमिंग ही नहीं हुई थी, एंड कभी वहां Hmm. होती नहीं थी. एंड इट वाज जस्ट बिकॉज चंडीगढ़ बहुत नियर है, जाते रहते हैं, तो वहां पे ये था कि जिस लेक में हम बोटिंग करते हैं, जिस लेक में टूरिस्ट आते हैं या हम घूमने आते हैं, उस लेक में स्विमिंग जरूर होनी चाहिए एक बार. बट सुक्ता लेक में ओपन वाटर स्विमिंग, वो कैसा था? हाउ वाज द एक्सपीरियंस? बिकॉज आप एक दिन पहले आए एंड आपने उस चीज का ट्रैक समझा कि हाँ यहाँ से स्विम करके जाना है. जी. सो उसका मैं आई वाज लाइक पहले तो नॉन स्विमर ही था, उसके बाद पूल स्विमर, बड़ी मुश्किल से टेक्निक सीखी, पूल स्विमिंग सीखी, एंड उसके बाद एकदम से ओपन वाटर एक बहुत बड़ा फियर होता है. अगर एक बंदा जो हम्म. पूल में सीख रहा है उसके लिए ओपन वाटर इज इट्स अ फियरफुल थिंग. लेकिन उसमें जब हम ट्रायल स्विम कर रहे थे, उस टाइम में जब 3-4 जने साथ थे, उन्होंने साथ स्विमिंग की, तो थोड़ा डर खुल गया नेक्स्ट डे के लिए. हमने जैसे कि पहले स्विमिंग सेशन था, पहले स्विमिंग को ही हमने समझना था, तो वहां पे उन्होंने जो हमारे मेंटर थे वो ऊपर थे, उन्होंने सारा समझाया कि यहाँ से लूप लेना है, कैसे करना है. एक यूज टू स्विम था, वो हमने कर लिया, एंड उसके बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया. एंड जो वहाँ लाइफ गार्ड्स होते हैं उनको देख के भी और कॉन्फिडेंस आया होगा कि अगर कुछ नहीं भी हुआ तो फिर ये लोग हैं. नहीं, एक्चुअली उसमें कुछ ड्राउनिंग का कुछ ऐसा फियर नहीं होता है. उसमें हम्म. ज्यादातर फियर यही होता है कि जैसे कि हम मूवीज में देखते आ रहे हैं या लोगों से सुनते आ रहे हैं कि ओपन वाटर में मगरमच्छ होता है, ऐसा कुछ होता है. मतलब वो हमें जब जब आगे मैंने आयरन मैन ये रेसेस की और इवेंट्स किए, तो मुझे पता लगा दैट इज ओनली लिमिटेड अप टू मूवीज. असल में ऐसा कुछ नहीं होता है, दैट इज देयर बट इन द डीप वाटर, एंड उस लेक्स में या उस जगह में जहाँ पे कोई जाता भी नहीं है. तो वो थोड़ा एक जो रूमर था या एक जो बातें पहले से दिमाग में थी वो निकल गई. तो जैसा आपने अभी बताया था पिछले अपनी रेस के बारे में, आप बता रहे थे लद्दाख की, एंड उसमें दैट वाज अ डुअथलॉन एंड दिस वाज ट्रायथलॉन. ट्रायथलॉन जी. तो इसमें जैसे डिफरेंस तो इट इज ऑब्वियस दैट वहां पे स्विमिंग नहीं थी, यहाँ पे स्विमिंग वाला कंपोनेंट एडेड था फॉर अ ट्रायथलॉन. द रेसेस और द रनिंग एस्पेक्ट, व्हाट इज द डिफरेंस इन लद्दाख एंड हियर इन सुखना? सो सुखना में स्विमिंग तो लद्दाख में नहीं थी, एंड जो दो एस्पेक्ट्स रह जाते हैं रनिंग और साइकिलिंग वाले, उसमें लद्दाख में सबसे ज्यादा हाई एल्टीट्यूड का होता है, क्योंकि दैट इज 3500 मीटर्स, एंड जहाँ पे हमारा वेन्यू था वो उससे भी थोड़ा ऊपर था, अप्रोक्सीमेटली 3700 मीटर्स. तो इतने अल्टीट्यूड में जब आप रनिंग या साइकिलिंग कुछ भी कर रहे हो, मतलब वहां पे अगर टूरिस्ट आता है नॉर्मली चलना भी मुश्किल हो जाता है, रनिंग और साइकिलिंग तो बहुत दूर की बात है. तो जैसे कि मैंने बताया कि हम थोड़ा लेट आए थे, हमने एक्लेमेटाइज नहीं किया, बहुत बड़ी गलती की. हम जस्ट एक एक या 2 दिन पहले ही फ्लाइट से आए थे, उसकी वजह से हमें क्रैम्प्स आए बहुत ज्यादा, एंड डिहाइड्रेशन, सिवियर डिहाइड्रेशन हुआ. एंड एक बार तो क्रैम्प इतना मुश्किल आया कि जिसमें साइकिल छोड़ना पड़ा, एंड आई हैव टू जस्ट स्ट्रेच माई सेल्फ आउट ऑन द दिस रोड, ऑन द साइड ऑफ द रोड. तो उसमें काफी प्रॉब्लम्स आई, लेकिन कुछ भी रेसेस हैं वो चैलेंज के लिए होती हैं. वी जस्ट गॉट अ लेसन, कुछ सीखने को मिला, कुछ चैलेंज मिला, एंड कंप्लीट हो गई थी रेस बहुत अच्छे तरीके से, रनिंग भी अच्छी रही, एक्सपीरियंस अच्छा रहा, रास्ते अच्छे थे. तो रेसेस का यही होता है कि इफ समवन इज ऑर्गेनाइजिंग एनी रेस, उसमें जो आपका रेस ट्रैक है, चाहे वो रनिंग का है, चाहे साइकिलिंग का है, चाहे स्विमिंग का है, वो एक व्यूज वाला होना चाहिए, कि बिकॉज ज्यादातर लोग एंजॉय करने के लिए आते हैं, मतलब
फिजिकली Absolutely. मतलब जो करना वो एक अलग पार्ट है, लेकिन अगर उसके व्यूज ब्यूटीफुल होंगे तो वो मेंटली आपको एंगेज रखेगा, बिकॉज एंडोरेंस में बंदा बोर बहुत होता है। तो कहीं ना कहीं लद्दाख के व्यूज अच्छे हैं, हिल्स में काफी रेसेस होती हैं और भी मैंने बहुत की हैं, तो उसमें जो व्यूज होते हैं वो कहीं ना कहीं आपको एंगेज रखते हैं, और जो एक्सर्शन है वो आपके माइंड तक नहीं पहुंचती है, एंड जब पहुंचती भी है तब तक रेस खत्म होने वाली होती है। तो मैं ऑडियंस को व्यूअर्स को ये बता दूं, अगर somebody who is a Limca book holder, Limca records holder and Guinness record holder, he is saying कि एक्लिमेटाइज करना जरूरी है। ऐसी जो सिवियर कंडीशंस होती है वहां पे आप 1-2 दिन पहले जाइए, 3 दिन पहले जाइए, अपनी बॉडी को एक्लिमेटाइज कीजिए, उसके बाद जी प्रिपेयर फॉर द रेस। इट इज नॉट एडवाइजेबल कि आप ये प्रैक्टिस ना करें कि आप 1 दिन पहले पहुंचे और अगले दिन आप भागना शुरू जी करो। जी जी एग्जैक्टली। वहां से फ्रॉम डुएथलॉन टू ट्रायथलॉन एंड देन the title. Let's talk about the title. It's यस। not Gaurav Deep, it's Toughman Gaurav Deep. How does it feel? Yes, so it obviously feels good when you achieve something, and उसमें जो सुखना वाला इवेंट था उसमें मतलब उसमें मेरी जो एक्सपेक्टेशंस थी वो उसको मैंने सरपास किया, बिकॉज मेरे को यही था कि जो ये हाफ ट्रायथलॉन जो हाफ ट्राई डिस्टेंस है, दैट इज 1.9 स्विम, 90 के साइकिल एंड 21 के रनिंग, ये मैं खत्म कर जाऊं 7.5 घंटे में, ये मेरे लिए बहुत है। Hmm. लेकिन वहां पे इतना अच्छा रहा कि मैं वहां पे सेकंड पोजीशन पे था, मतलब लास्ट में थोड़ा रन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई जिस वजह से आई एंडेड अप थर्ड, बट आई डिड वेरी गुड, एंड इनफैक्ट जो फर्स्ट ग्रुप था, मतलब जो फर्स्ट पर्सन था वो एक आर्मी आर्मी वाला था, ही वाज एन आर्मी मैन, एंड उसका जो आर्मी के जो उसके कोलीग्स थे, जो उसकी बटालियन के लोग वहां पे थे, उन्होंने भी बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया। तो ये चीज बहुत अच्छी होती है कि जब आपके साथ कोई कर रहा है, मतलब इवन ही इज योर राइवल यू कैन से, उनके भी जब टीम आपको मतलब एनकरेज कर रही है तो बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे लगता है। हैं। यस बिल्कुल। तो आपने एक रेस कंप्लीट की और उसको कंप्लीट करने का ही मोटिव था, एंड यू एंड अप ऑन अ पोडियम, तो डेफिनेटली उसका एक्सपीरियंस अच्छा रहता है, एंड इट फेल्ट रियली नाइस एंड इट बूस्टेड माय कॉन्फिडेंस टू गो टू हायर डिस्टेंसेस। What was your plan to approach this endurance Toughman title? इसमें प्रैक्टिस सेशंस बहुत लंबे जाते थे, इसमें रनिंग लंबी जाती थी, बिकॉज चंडीगढ़ का जो उस टाइम पे हो रहा था वेदर काफी गर्म था। अनलकीली उस Hmm. दिन हमें उससे पहले वाले दिन बारिश थी, लेकिन उस दिन बहुत ज्यादा टेम्परेचर गर्मी की वजह से, जैसे बारिश के नेक्स्ट दिन थोड़ा टेम्परेचर ज्यादा बढ़ गया था, तो हमने कहीं ना कहीं वेदर के अकॉर्डिंगली जब हमने करना होता है, क्योंकि ट्रायथलॉन में क्या होता है कि जो थर्ड लेग है वो आपकी रनिंग की होती है, एंड जब आपकी वो स्टार्ट होती है तो ऑब्वियसली अगर वो सुबह 6 बजे स्टार्ट हो रही है फर्स्ट लेग, तो थर्ड लेग तक पहुंचते पहुंचते दोपहर हो ही जाना है, एंड यू शुड बी रेडी फॉर द Totally. गेटिंग burnt in the Heat. sun. Apart from you are running, that is one thing, and another thing is the sun is straight on your head, and वो एक डिफिकल्ट चीज थी। मतलब रनिंग के सेशंस मैंने किए थे, लेकिन रनिंग थोड़ी सी मतलब होता है कि हॉट एंड ह्यूमिड वेदर में नहीं की, थोड़ी अच्छे वेदर में करी थी, उसकी वजह से मेरे को रनिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आई, ह्यूमिडिटी की वजह से या हीट की वजह से। एंड स्विमिंग में भी पूल स्विमिंग और सी स्विमिंग या ओपन वाटर स्विमिंग कह लीजिए, Open ये water. बहुत डिफरेंट कंसेप्ट है। हर चीज में आपको काम करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि अगर आप पूल स्विमर हो आपको कि मैं तो ओपन वाटर में वो सेम चीज करूंगा, लेकिन इसमें लूप्स नहीं होते हैं, पार्टिसिपेंट्स बहुत होते हैं जो आपके, मतलब कई बार क्या होता है कि आपके हाथ लग गया या कोई पार्टिसिपेंट आपके आगे जाना है, आपने Hmm. क्रॉस करना है, तो वो काफी चीजें होती हैं जिसको आपको देखना पड़ता है, तो वो भी एक चैलेंज था। उसके बाद जब आपने साइकिलिंग करनी होती है तो साइकिलिंग का भी होता है कि सीधा स्विमिंग के बाद साइकिलिंग करना, प्रैक्टिस सेशन में हम Hmm. हर एक्टिविटी अलग अलग करते हैं, तो Hmm. उसमें काफी चीजें थी कि आपके जो क्वाड्स होते हैं, हैमस्ट्रिंग्स होते हैं, काफ्स होती हैं, ये मतलब पूरी टाइट हो जाती हैं, तो कैसे आपने अपनी हाइड्रेशन लेनी है उस टाइम पे, कैसे आपने सॉल्ट लेना है, इलेक्ट्रोलाइट्स लेना है, कैसे अपने आप को फ्रेश रखना है, क्योंकि अभी तो डिस्टेंस Hmm. आपका बहुत ज्यादा पड़ा है, तो उस वजह से Hmm. सारी ये स्ट्रेटेजी पहले प्लान की, कुछ प्लान्ड थी, कुछ इवेंट्स कर करके सीखी, एंड अभी भी सीख रहे हैं, Understood. क्योंकि आप हमेशा गलती करते हैं इसमें। करेक्ट। सो ये तो आपकी प्रैक्टिस वाला एस्पेक्ट हो गया कि आप हर लेग का, जैसे आपने बताया था 3 लेग, आफ्टर ईच लेग यू विल गेट एग्जॉस्टेड। आपकी जी साइकिलिंग है, स्विमिंग है, फिर लास्ट में आपकी रनिंग है, वो बहुत ज्यादा जी एक्सर्ट करती है आपकी बॉडी को। सो इन ऑर्डर जी। टू प्रिपेयर योर बॉडी फॉर दिस, व्हाट
is the nutrition value that you ensure कि इतना nutrition मुझे लेना है, and how do you cope up with the mental strength? Because last में जब आप ये triathlon कर रहे हैं या फिर आप long distance running कर रहे हैं, the hardest part is the last 10 kilometers. वो बस होता Yes, है कि yes. जल्दी जल्दी खत्म करना है, तो उसमें mental state कैसा होता है? And how do you train for it? एग्जैक्टली आपने बताया कि कब खत्म होगी रेस, अब बस बहुत हो गया, यू स्टार्ट वॉकिंग, मन में काफी नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं कि यार बस हाँ, अब नहीं चला जाएगा। तो उसको कोप अप करने के लिए फर्स्ट थिंग इज, जो आपने ट्रेनिंग की है, जो आप ऑल गो थ्रू हुए हो, वो कैसी की है आपने। अगर उस ट्रेनिंग में आपके सेशंस हैं, जैसे कि थ्रेशोल्ड सेशंस होते हैं जिसमें आपकी हार्ट बीट अप्रोक्सीमेटली 180 185 90 190 क्रॉस कर जाती है, तो ऐसे सेशंस में क्या होता है, वो आपका थ्रेशोल्ड लेवल बढ़ा देती हैं। तो उसमें वो आपकी काफी हेल्प करती हैं लास्ट, जैसे कि रेस के एंडिंग वाले पॉइंट पे। तो वो एक चीज है। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑब्वियसली ट्रेनिंग का तो हर बंदे का अलग नजरिया होगा, लेकिन न्यूट्रिशन हम्म, का काफी कॉमन होता है, तो मैं वो बता देता हूँ। न्यूट्रिशन में हम कैलोरीज को जरूर देखते हैं, बिकॉज 1 आवर अगर आप साइकिलिंग कर रहे हो अप्रोक्सीमेटली 500 कैलोरीज जाती हैं। स्विमिंग में भी अराउंड 2 to 300 जाती हैं, और रनिंग में अबव 600 चली जाती हैं। तो इस सब को हमें देखना पड़ता है कि कितनी कैलोरीज जा रही हैं, हमने कितनी इनटेक करनी है। तो उसका क्या होता है कि रेस में तो हम इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह, बनानास हो गए, जो न्यूट्रिशन पॉइंट्स पे काफी चीजें थी, एनर्जी जेल्स हो गए, बार्स हो गए, फास्टन अप, तो वो हम लेते रहते हैं। मतलब अगर आप साइकिलिंग कर रहे हो तो हर एक हाफ एन आवर बाद आपको मतलब कम से कम 1 लीटर पानी तो आराम से ही जाएगा। तो वो एक चीज होती है, ये सब की प्लानिंग आपको पहले ही करनी पड़ती है। इवन ट्रेनिंग टाइम भी हम्म, इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। तो न्यूट्रिशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड रेस में जब हम होते हैं, व्हाइल द रेस इज ऑन गोइंग, तो उसमें हम खाने का थोड़ा कम होता है, लेकिन थोड़ा हम्म, हाइड्रेशन के लिए ज्यादा चीजें होती हैं। एंड अगर आप कुछ चीज सॉलिड वाली ले भी रहे हो, तो वो जेल्स के फॉर्म में एक तरीके से लिक्विड ही होती है, या हाँ, चॉकलेट्स होगी, बनानास होगी, ये सबसे बेस्ट है, बिकॉज ये डाइजेशन में भी इजी होती है और प्रॉब्लम भी नहीं आती है। बिकॉज अगर आपका हम्म, साइकिलिंग करते, स्विमिंग करते कुछ पेट गड़बड़ हो गया, देन यू मेस्ड अप विद द रेस, तो काफी प्रॉब्लम्स आ करेक्ट। जाती हैं। तो टाइटल यस, तो यू हैव मिलेगा, टू बी। बट वो डीएनएफ मिलेगा। जी, बिल्कुल, डीएनएफ मिलेगा, और वो थोड़ा एक्सपीरियंस भी नहीं अच्छा रहेगा, बिकॉज़ यू एंडेड अप हाँ, इन दैट डीएनएफ जस्ट बिकॉज़ आपने अपनी बॉडी पे वर्क नहीं किया, आपको अपनी बॉडी का पता नहीं था कि हम्म, क्या चीज़ मैं ले सकता हूँ, क्या नहीं। तो प्रैक्टिस सेशंस में भी आपको ट्राई करना चाहिए, बिकॉज़ काफ़ी रेसेज़ हैं जैसे अदर कंट्रीज़ में होती हैं आयरन मैन, तो उसमें क्या होता है कि वो आपको यहाँ पे कोई और चीज़ मिल रही है, जैसे जेल्स मिल रही हैं, आपको वहाँ पे किसी और कंपनी के मिलेंगी। तो कंपनी, ब्रांड हम्म, और उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू, वो सब मतलब इफेक्ट करती है आपको। ये बहुत, जैसे हम डीप जाते हैं तो उसमें पता लगता है। तो आपने कभी भी एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, पहली बात। जो चीजें आप ट्रेनिंग में खा रहे हो, पी रहे हो, वही चीजें आपने आपकी रेस में खानी पीनी है। ये नहीं है कि वहां पे आपको रेड बुल दिख गई तो आप उसके कैन कैन 2-3 गटक गए कि यार ये बहुत अच्छा है, नहीं। मतलब काफी बार होता है, इवन मेरे साथ भी हुआ, मैंने ये किया है, तो तभी मेरे हाँ, को सेकंड टाइम पता लगा कि नहीं, यू शुड बी स्टिकिंग टू द थिंग्स व्हिच यू यूज व्हाइल ट्रेनिंग। तो उन सब चीजों का आप रखोगे तो आपकी रेस ऑटोमेटिकली आपकी अच्छी जाएगी, टाइमिंग्स भी अच्छी होंगी। तो द सेम हैपेंड। सारे एंड ट्राइड एंड टेस्टेड मेजर्स जो होते हैं वही करने चाहिए। कुछ भी आउट ऑफ द बॉक्स मत करो, क्योंकि रेस मैसअप होने का चांस बिल्कुल, काफी ज्यादा होता है। एग्जैक्टली, यस। गौरव जी, जैसा आप बता रहे थे कि आपको अपनी बॉडी का अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आपको बॉडी के साथ साथ आपकी सराउंडिंग्स की भी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जैसा आपने पिछला बताया, लद्दाख के उसमें आप एक दिन ही पहले पहुंचे थे, यू कुड नॉट एक्लिमेटाइज। सो व्हेन जी। यू अप्रोच अ रेस, जैसे आप कोई भी रेस को अप्रोच करते हैं, आप क्या क्या एस्पेक्ट्स ध्यान में रखते हैं? तो जब मैं ये ट्रायथलॉन, चंडीगढ़ ट्रायथलॉन में कर रहा था, तो उसमें ऑब्वियसली जब एक दिन हम पहले पहुंचते हैं, हमें सारा हम्म, कुछ देखना पड़ता है, एंड ये एक नेसेसरी चेक इन होता है। एंड उसपे हम अपनी पहले तो, मैं जब पहुंचा वहां पे बहुत ही अच्छा गोल्फ कोर्स, मेरे ख्याल से सुखना सुखना का जो मेन, मेरे ख्याल से कुछ कोर्स था, उसकी पार्किंग थी, तो उसमें हम्म, जो साइकिल स्टैंड्स लगे हुए थे, तो सबसे पहले बहुत अच्छी चीज है, सबसे पहले जाओ अपना आप अपना साइकिल पे ही जाओ, वैसे ही मैंने किया। आप अपना साइकिल पे जाओ आराम से, वहां पे जाके जैसे साइकिल सबमिट होता है, चेक इन होता है, तो उसमें काफी चीजें देखी जाती हैं कि आपका साइकिल ठीक है, ओके, ब्रेक्स वगैरह ठीक है। तो वो हम्म, चीजें एक चेक हुआ छोटा सा, और उसके बाद हमने साइकिल स्टैंड पे रख दी है। तो
हमारा साइकिल चेक इन हो गया कि इसके बाद ये आप रेस के बाद ही कलेक्ट कर सकते हैं इसको, सो इट्स रेडी फॉर द रेस। एंड उसमें हमने वो रख दिया, और जो सामान होता है जो कि आपका हमें बैग्स भी दिए गए थे जो कि T1 बैग कह सकते हैं हम उसे, तो वो भी हम वहाँ पे रख देते हैं। उसमें हमें उस साइकिल के बिल्कुल बिसाइड में हम रखते हैं, उसमें किट होती है जैसे कि हम जब स्विमिंग से ट्रांजिशन करके साइकिलिंग में आ रहे हैं, तो वो चीजें वहां पे रखी होती हैं। तो वो एक बहुत अच्छा वेल लेड एक ट्रैक था जहाँ पे हमने साइकिल जमा की। उसके बाद जैसे ही हम उसको क्रॉस करके जाते हैं तो सामने देखा कि वहां पे स्विमिंग का कोर्स चल रहा है जिसमें काफी लोग थे वहां पे खड़े हुए। एंड पहले तो जो वहां पे मेंटर थे वो बता रहे थे कि मतलब काफी चीजें उन्होंने बताई कि स्विमिंग है इतने टाइम बाद ये सुखना लेक में हो रही है। दैट वाज आल्सो ऑसम टू हियर इट। वहीं हमें ये चीज पता लगी। एंड उसमें उन्होंने कोर्स बताया और हर 5 या 10 पार्टिसिपेंट्स को ही बुलाया कि आप हर छोटे छोटे ग्रुप्स में आइए आराम से, सो दैट एक दूसरे के बीच में हम ना लगते हो। एंड आप आके अपना स्विम करो 200-300 मीटर जितना आपका दिल करे, जो आपने देखना है करो। तो वो एक अच्छी चीज थी, हमने वो स्विम किया। एंड बहुत उसमें चीजें पता लगी, कोर्स पता लग गया स्विमिंग का। एंड थोड़ा उसमें एक डर होता है, जो फियर फैक्टर था वो दूर हो गया। एंड वो चीज अच्छी लगी। एंड कमिंग ऑन टू द इवन जब रेस थी उस टाइम पे भी, जब मेरे ख्याल से फॉर एज आई कुड रिमेम्बर, इंडियन ऑयल के मेरे ख्याल से कुछ कमिश्नर थे आई गेस, तो उन्होंने फ्लैग ऑफ किया था रेस। तो जैसे ही फ्लैग ऑफ हुआ, मतलब ऐसा नहीं था कि सब लोग भगदड़ कर रहे हैं, आराम से दो दो के ग्रुप्स हाँ। में, दो दो तीन तीन के ग्रुप्स में लोग गए। इट वाज अ वेरी स्मूथ स्टार्ट। तो वो भी एक पॉजिटिव चीज होती है, ये चीजें भी हमें ध्यान में रखते हैं। इनमें ऑर्गेनाइजर्स एंड ऑब्वियसली पार्टिसिपेंट्स दोनों का ही रोल होता है कि जब हम ऐसी चीज कर रहे हैं। तो स्विम बहुत स्मूथ स्टार्ट था। एंड जैसे स्मूथ स्टार्ट हुआ वैसा ही स्मूथ बाहर हम वापस आए। जल्दी से फटाफट वो बैग उठाया, अपना जो चेंज थोड़ा बहुत चेंज होता है वो मैंने किया, कुछ एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन साथ में कैरी करना है वो मैंने किया। एंड देन वी वर बैक, वी आर आई वाज ऑन द सैडल एंड साइकिलिंग स्टार्ट की। और बहुत अच्छा रूट था अगेन, जो ये सुखना लेक से जो ओबराय होटल है, मुल्लानपुर, जो मुल्लानपुर पे होटल है, वो बहुत अच्छा, एक अच्छा कोर्स। एंड वो रोड बिल्कुल नहीं बनी है। तो आपको जब आपने चेक इन की अपनी साइकिल, आपको पता था आपकी साइकिल किस स्पॉट पे है, तो यू आर अवेयर कि मुझे यहाँ से स्विम करते हुए निकलना है, यहाँ से मुझे जी। एग्जिट लेके इस साइकिल पे आना है, यहाँ पे रेडी होके फिर आई हैव टू टेक अनदर kilometers or number of what is the route being provided. So do you go towards that route एक दिन पहले आप एक बार चेक करने जाते हैं? हाँ, बिल्कुल उसमें आपको करवाते हैं सारा रूट चेक इन, वो आप पे डिपेंड हम्म, करता है। बिकॉज़ मैं चंडीगढ़ आता रहता हूँ, आई न्यू द रूट, सो मैंने वो ज़्यादा नहीं किया, लेकिन फ्यू फ्यू डिस्टेंसेस किए। लेकिन इट्स मैंडेटरी, एंड बाकी पार्टिसिपेंट्स ने किया था, बिकॉज़ बहुत सारे पार्टिसिपेंट लाइक डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया से थे, कोई दिल्ली से था, कोई राजस्थान से था, तो उनको ऑब्वियसली करना पड़ा ये चीज़। मेरे को थोड़ा रूट का हम्म, अवेयर था। इवन आप अगर रूट नहीं भी कर रहे हो तो हमारा जो ग्रुप था उसमें काफ़ी ज़्यादा रूट के बारे में चीजें थी, तो उसी में ही हमें बहुत ज्यादा क्लैरिटी आ गई, मोर देन एनफ। एंड एक और चीज है कि रूट में कोई प्रॉब्लम थी नहीं, बिकॉज मार्शल्स थे हर जगह पे। अगर अगर सपोजिंगली आपने रूट फर्स्ट डे नहीं किया, सेकंड डे वो मार्शल्स इतने हेल्पफुल होते हैं। पहली बात तो सबके पास जो एक अलग एक ड्रेस, एक कोड था उनका, हम्म, टी शर्ट का कोड था, वो ब्लैक में दिख जाते थे दूर से ही कि वो खड़े हैं। तो बहुत बार ऐसा हुआ, हमने पूछा भी मतलब रूट क्लैरिटी के लिए, तो उन्होंने बता दिया। एंड इट वाज वेरी गुड। मतलब वो हैंड साइंस देते ही रहते थे, चाहे आप ना भी पूछो, इवन इवन दो यू नो द रूट, बट स्टिल दे हम्म, कीप ऑन डूइंग दैट। एंड उसके बाद बहुत सिंपल रूट था, लूप्स ही थे, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं था उसमें कुछ कंफ्यूजिंग या कुछ और। एंड हमें बहुत इजी लगा वो रूट करना। हाइड्रेशन पॉइंट्स भी काफी थे, मतलब उल्टा हमें तो रिफ्रेन करना होता था कि भाई पॉइंट आ गया, अब तू रुकेगा, कुछ खाए पिएगा नहीं करना ऐसा। इंस्टेड ये लालच था कि टाइम और बचा लो। तो मतलब खुद को हम उस चीज से रोक रहे थे। इट्स बेटर टू स्टॉप एट एवरी पॉइंट। उससे बेटर है कि आप एक बार लो, कैरी करो एंड यू यूज इट। बट आपको सेकेंड लेग खत्म करने पे यू हैव टू पुट योर साइकिल एट द सेम स्पॉट जहाँ पे आपका एक यस, डेडिकेटेड स्पॉट दे रखा होता है। बिल्कुल बिल्कुल वो सेम था। जैसे कि मैंने बताया कि जो ओबराय होटल का ही मेन एंट्रेंस है, उसी के बिल्कुल बगल में वो चीज थी। एंड वी केप्ट आवर साइकिल। एंड इनफैक्ट उस टाइम पे तो इतनी भगदड़ी थी कि आई वाज वेयरिंग माय ग्लव्स, वो ग्लव्स ही नहीं मैंने उतारे व्हाइल आई वाज रनिंग। वाइल तो रनिंग। इतना, या बिकॉज इतना टाइम वो दिमाग में ये था कि जल्दी से साइकिल को छोड़ो एंड हाँ। यू रन लाइक दिस, लाइक दैट ओनली। तो सो दैट वाज द थिंग।
एंड यस, रनिंग में भी हाइड्रेशन पॉइंट्स काफी थे। शेड में रनिंग थी प्लस पॉइंट 2-3 किलोमीटर, लेकिन लास्ट में तो थोड़ी फिर धूप ज्यादा हो गई थी। अब उसमें तो कोई भी नहीं कुछ कर सकता है। यू इट्स जस्ट योर करेक्ट। ट्रेनिंग जो आपको हेल्प करती है। देन व्हेन योर मेंटल गेम स्टार्ट गेटिंग स्ट्रॉन्गर कि नहीं, जस्ट थोड़ा सा बचा है, थोड़ा और गिरते हैं। एवरी टाइम इट्स देयर। अब आप फर्स्ट टाइम इतनी लंबी रेस कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपको, आपके बॉडी को, आपके माइंड को ये चीज पता है कि भाई तूने 5 घंटे या 4 घंटे तक ही तूने कुछ किया है। अब ये तेरा 6th आवर स्टार्ट हो चुका है, अब बस कर। दैट स्टार्ट्स ऑन द माइंड ओनली, बिकॉज आपको अपनी कैपेबिलिटी पे तभी मतलब एक कॉन्फिडेंस आएगा जब आपने वो चीज की हुई है पहले। दिस इज योर फर्स्ट Yes. टाइम, तो उसके बाद ऑटोमेटिकली ही बॉडी एक पेन मोड में चली जाती है। एंड वो आपकी ट्रेनिंग, आपकी न्यूट्रिशन, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ के ऊपर है कि वो पेन मोड आप कितने टाइम तक एंड्योर कर सकते हो और कब तक कर सकते हो। तो दैट पेन मोड वाज देयर, लाइक आपने बताया कि लास्ट 10 किलोमीटर्स तो नहीं, लास्ट 5 किलोमीटर्स में, तो उसमें काफी ज्यादा धूप बढ़ गई एंड प्रॉब्लम्स आई। मतलब वो बॉडी पूरी डिहाइड्रेट हो चुकी थी एंड उसमें काफी चीजें आई। लेकिन आफ्टर ऑल everything got into the place and I ended up well। हाँ, तो उसमें जब सबसे बड़ी बात जब पता लगा कि यार सेकंड या थर्ड पोजीशन पे एंड कर रहा हूँ, एंड इसमें अगर मैं अब स्लो हुआ तो आई कैन लूज इट, एक अपॉर्चुनिटी मिली है। तो उसके बाद एक तो फटीग ज्यादा, एक धूप ज्यादा, ऊपर से वो मेंटल प्रेशर, तो फिर उसने ऐसा किया कि वो, मैं रुका नहीं, मैं करता गया। तो मैंने अपने आप को बहुत ज्यादा पुश किया। तो वो चीज एक अच्छी रही जिसने काफी एक नए हॉरिजॉन को एक्सप्लोर किया, हमने अपने खुद की कैपेबिलिटी को एक्सप्लोर किया। तो या इट वाज वेरी गुड। एंड पोडियम फिनिशर होने का एक जो एहसास और वो खोना नहीं है, तो बॉडी को थोड़ा और पुश करा जा सकता है। या एग्जैक्टली वही। देन सारी बात लालच पे, तो वो जो लालच थी, अब इवेंट को कंप्लीट करना, तो मतलब 2 घंटे बचे थे एंड 5 किलोमीटर तो आप चल के आराम से कर सकते हो मतलब। हाँ। बट वो चीज हुई थी, हमने एक पर्सनल बेस्ट बनाना है अपना, और एक पोडियम फिनिश अगर मिल रहा है तो करो, तो उसकी वजह से काफी वो पुश हुआ। एंड द टोटल ड्यूरेशन ऑफ द ट्रायथलॉन फॉर यू वाज? इट वाज अराउंड 6:30 से 6:40 के बीच में कुछ टाइमिंग थे। आई थिंक 6:36 में भी। तो ओके। जितना एक्सपेक्ट किया था उससे अच्छा टाइम था। रीजन बीइंग के स्विमिंग स्विमर नहीं था मैं बहुत अच्छा, तो उसकी स्विमिंग में बहुत ज्यादा टाइम मैंने लिया। एंड अगर स्विमिंग थोड़ी अच्छी होती तो आई कुड हैव एंडेड एट 6, अराउंड 6 समथिंग। लेकिन यस, बाकी चीजें बहुत अच्छी की, तो दैट वाज अ गुड एंड व्हेन पार्ट। यू फिनिश एंड यू नो दैट यू आर अ पोडियम फिनिशर, हाउ इज दैट? क्योंकि आपको पता होता ना कि हाँ, अब द मोमेंट ऑफ ग्लोरी इज हियर एंड आई विल फिनिश विद द सेकंड प्राइज और फर्स्ट प्राइज। दैट वाज वेरी गुड। उसमें सबसे बड़ी बात थी, मतलब एक पॉजिटिव चीज भी था, एक छोटा सा रिग्रेट भी था। पॉजिटिव चीज ये थी कि हमारा जो लंच था, दैट वाज इन दिस ओबराय सुख विलास। एंड जो नेगेटिव पार्ट था वो ये था कि यू आर इन राइट नाउ, यू आर लुकिंग लाइक शिट एंड यू हैव टू गो देयर एंड डू द लंच, बिकॉज एक होता है कि कपड़े आपके, यू आर वेयरिंग द किट एंड उसपे मिट्टी लगी हुई है, शक्ल के पूरे 12 बजे हुए हैं। सो वो एक चीज थी जिसने थोड़ा किया। एंड आफ्टर मतलब काफी ज्यादा अच्छी रिफ्रेशमेंट्स थी, वी डिड लंच, और लंच भी बहुत मजा आया बिकॉज फटीग थी, इतने टाइम से खाना मिल नहीं रहा था अच्छे से, एंड दैट टू इन दैट स्टैंडर्ड। सो इट वाज वेरी गुड। एंड आफ्टर दैट जो हमारी जो पोडियम सेरेमनी हुई, द फाउंडर मिस्टर मंगला वाज देयर, एंड उन्होंने हमें जो ट्रॉफीज दी, सारे वो आर्मी की यूनिट भी वहीं खड़ी थी, उनके साथ फोटोज क्लिक की। ऑब्वियसली एक प्राउड मोमेंट था ही था उसमें। हमने सुना है कि रिफ्रेशमेंट्स में काफी कुछ चिल्ड चीजें भी होती हैं। हाँ, वो अगर मैं उसको यस बोलूंगा तो काफी लोग जज करेंगे, दैट इज व्हाई आई रिफ्रेन फ्रॉम दैट पार्ट। इट वाज देयर। No, the यस, refreshments are chilled, the refreshments are good. Anybody who wants to can avail that. जो यस, लोग नहीं यस, करते वो नहीं करते, बियर अवेलेबल है, अब जिसको करना है वो कर सकते हैं, जिसको नहीं करना है वो नहीं करे। बिल्कुल बिल्कुल। एंड इसमें कोई वो नहीं है, बिकॉज इट्स अ सोर्स ऑफ रिकवरी। मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं, आप कब से रेस कर रहे हो, आप डिहाइड्रेटेड हो, तो साइंटिफिकली करेक्ट। इट्स अ गुड थिंग। एंड ऑब्वियसली किसी का जोर नहीं होता, जिसने करनी है दे कैन डू इट। बट एवरीथिंग वाज प्रोवाइडेड, सबसे बड़ी बात। एंड एक और चीज, जो फिजियो की टीम थी वो बहुत अच्छी थी। मतलब इतनी लंबी रेस करके मेरे को था कि भाई 5-7 दिन तो कहीं नहीं गए कि मेरे मतलब क्रैम्प्स रिकवरी। पड़ेंगे, टांगों में दर्द होगी। लेकिन जो फिजियो थे, मैंने फटाफट, बिकॉज वी वर द फर्स्ट 2 और 3 फिनिशर्स,
तो हमने जल्दी से जाके फिजियो के पास चले गए और उसने इतनी अच्छी मतलब रिकवरी करी एंड आई वाज मोर देन हैप्पी। तो उसके बाद सिर्फ जो थकावट आपकी 4 या 5 दिन हो रही होनी है उसका ड्यूरेशन 1 या 2 दिन रह गया। तो ये भी बहुत एक नेसेसरी चीज़ है कि फिजियो आप ज़रूर करवाएँ, चाहे आप फर्स्ट फिनिश कर रहे हो, चाहे आप लास्ट फिनिश कर रहे हो, कोई मैटर नहीं करता। आफ्टर ऑल आपके एनर्जी लगी है, आपके मसल्स सारे यूज़ हुए हैं। तो दैट वाज़ अ वेरी गुड थिंग अकॉर्डिंग टू मी। जो फिजियो अवेलेबल थे, एक नहीं 3-4 बंदे थे एंड उन्होंने अच्छे अच्छे तरीके से हमें मतलब स्ट्रेच आउट किया एंड जिससे काफ़ी रिलैक्सिंग हुआ एंड आफ्टर दैट लाइक आई हैव ऑलरेडी सेड लंच एंड द चिल्ड थिंग वो सारे अच्छे रहे। Absolutely. And how does Toughman Triathlon set apart from the triathlons that you have attended? I understand you have done triathlons internationally as well. सी इसमें मैंने काफ़ी ट्रायथलॉन्स किए हैं। मैंने दिल्ली के कम से कम 4 ट्रायथलॉन्स कर चुका हूँ। हालाँकि उस चीज़ पे हम बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। 3 ट्रायथलॉन्स आई हैव डन इन दिल्ली, उसमें से एक में मैं फर्स्ट था, एक में सेकंड था। उसमें मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, आई हैड द एसीएल इंजरी जिसकी वजह से थोड़ा-सा मेरे मसल में प्रॉब्लम आई। उसकी वजह से आई वाज़ डूइंग इट नॉट जस्ट फॉर पैशनेटली आई वाज़ डूइंग इट। इसमें कुछ प्रोफेशनली नहीं मैं कर रहा था। तो उससे पहले जो मैंने रेसेस की थी उसमें एक रेस थी वो सदर्न इंडिया में थे। अब मैं उसका नाम नहीं ले सकता या बता नहीं सकता, दैट इज ऑल्सो वेरी रॉन्ग थिंग। बट उसमें ऐसा था कि वहां पे वॉलंटियर मतलब हमारी रेस 6 बजे स्टार्ट हुई और वॉलंटियर 6:30 आ रहे थे। तो ये एक बहुत गलत बात थी। उसमें इतनी मतलब ये मिसकम्युनिकेशन Organized. हुआ और लोगों को रूट नहीं पता है। तो उस ट्रायथलॉन के बाद मतलब वो मेरी वर्स्ट ट्रायथलॉन थी। तो Hmm. लेकिन उसमें भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आई थी मुझे। तो अगर आपको एक बार प्रॉब्लम आती है तो हमेशा आपका दिमाग में ये रहता है कि इस रेस में अगर ऐसा हुआ तो पंगा पड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था बिकॉज़ मैं मेरे ख्याल से सुखना की पार्किंग में जब रेस डे था, जब मैं आया था बिल्कुल हमारे साथ ही थे जो वॉलंटियर्स हैं। तो दैट मीन्स कि वॉलंटियर आधा पौना घंटा पहले आ रहे हैं। तो हमें कहीं न कहीं वो मेरे को उस ट्रायथलॉन की याद आई कि यार ये डिफरेंस मतलब एक चीज़ और प्लस कलर कोड था जो टी-शर्ट का कोड है, मतलब आप Hmm. आपकी क्रू को अलग से पहचान सकते हो। नेक्स्ट टाइम अगर मैं आयरन मैन करूँ तो मैं टफ मैन की रेसेस को मतलब इट्स लाइक स्टैंडर्ड तो सेम है, डिस्टेंस सेम है, सब कुछ सेम है एंड मैं इसको एक प्री आयरन मैन के तौर पे हमेशा ही करना चाहूँगा एंड लकीली वो डेट सेम आ जाए, मैच कर जाएँ तो और भी बेहतर है। ट्रायथलॉन के बाद भी मैंने एक 21 किलोमीटर्स की थी रेस जो कि टफमैन दिस चंडीगढ़ मैराथन के नाम से, हाफ मैराथन के नाम से जानी जाती है। जस्ट टू टेल यू अबाउट दैट एंड दैट वाज आल्सो वेरी गुड। उसमें सबसे बड़ी बात की बारिश हो रही थी एंड वो भी बहुत अच्छी की, अच्छे हाइड्रेशन पॉइंट्स थे, उसका भी मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और सबसे बड़ी बात वो कैपिटल कॉम्प्लेक्स के अंदर से स्टार्ट होती है एंड Yeah. उस जगह पे आप नॉर्मली जा नहीं सकते हो मेरे ख्याल से बिकॉज उसमें Hmm. जो जस्टिस बैठते हैं उनका मेन कॉम्प्लेक्स है। तो सबसे बड़ी बात हम जब चेक इन करने गए तो हमने वहां पे फोटोज खिंचाई, हम आराम से गए। सबसे बड़ी बात आपको एक वो मिल रहा है आपको एक कि आप उस जगह पे जा सकते हो जो कि नॉर्मली प्रोहिबिटेड है, वहीं से स्टार्ट हुआ। तो ये भी एक एक्सपीरियंस था कि बिकॉज दैट इज द स्टार्टिंग ऑफ चंडीगढ़ आई गेस, द एम्बलम Hmm. इज देयर जो मेन कैपिटल कॉम्प्लेक्स है। तो वेन्यू का हमेशा ही बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस। टफ मैन वेन्यू अच्छा सिलेक्ट करता है, देन अगेन द थिंग व्यूज एंड वेन्यू, यही चीजें मतलब बंदे को रिफ्रेश रखती हैं ऑल थ्रू द रेस। We have talked a lot about triathlons. Triathlons के अलावा आप और कौन सी रेसेस में पार्टिसिपेट करते हैं? You're still into endurance or you're still working for some records? Right now, I'm just working for my travel agency. So it's a startup. So I'm working on that. But थोड़ा fitness का Ironman कर ली Malaysia. I did it in 2022 Ironman Malaysia. So that is the Hmm. fifth hardest race in the world in terms of triathlon Ironman, and it's on the first number in Asian triathlon. तो वो Hmm. जब अब हो गया तो एक एक वो बहुत टाइम से उसकी प्रैक्टिस थी तो वो अब अचीव हो गया। अब थोड़ा ये है कि हाँ जरूर इन फ्यूचर रिकॉर्ड्स करने हैं। उससे बाद एक अल्ट्रा होती है वो करनी है, माइंड में है, लेकिन इट विल बी स्लो एंड स्टडी बिकॉज जो मेन करना था वो अभी हो चुका है। तो अब थोड़ा वही है कि एज के साथ साथ वो लालच वाला फैक्टर भी कम हो जाता है बिकॉज 17 18 19 20 एट दैट आपके आप में बहुत जोश होता है। यू जस्ट गो ऑन, Correct. यू डोंट सी एनीथिंग, यू जस्ट कीप ऑन डूइंग रेसेस एंड नाउ थोड़ा मतलब वो चीज पेशेंस थोड़ी बढ़ गई है एंड ऑब्वियसली
करनी है, काफी रेसेस करनी है, बहुत कुछ करना है। वो स्पा कभी जाएगा नहीं। वंस दे से दैट वंस अ स्पोर्ट्समैन ऑलवेज अ स्पोर्ट्समैन। चाहे वो Certainly. एक रनर किसी रेस को 4 घंटे में खत्म कर रहा है, चाहे एक 1.5 घंटे में खत्म कर रहा है, देयर इज अ कोट दैट अ रनर इज अ रनर, वेदर ही इज कंप्लीटिंग इन अ वेरी गुड टाइम और इधर ही इज जस्ट स्क्रॉलिंग अवे एंड मतलब चल के ही कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, बट वो स्पिरिट अंदर से वही है, वो पैशन वही है कि हमने रन करना है। तो वो कभी जाएगा नहीं, बिकॉज इट्स डीप एम्बेडेड इन द रूट्स, बिकॉज ऑल दैट स्टार्टेड एट अ यंग एज। सो यस। So how do you manage? Because when you talk about these triathlons, these races, being a runner, and being so passionate about it, how do you manage your work-life balance with travel agency and triathlons and other races? How are these being managed? So it's like usually this is a routine I guess everyone should follow. Like most of the people do the same. It's like अगर आप कर रहे हो तो you have to get up in the morning like around 4 or 4:30. Luckily, Hmm. I have a group, cycling group, which is in the name of DCG. So वहाँ पे हमारे लोग मतलब सुबह 5 बजे start कर देते हैं cycling या running जो भी activities करने हैं, because at 7 or 7:30 they have to go to back to their work. सो वो एक अच्छा एक Correct. वो आदत बनी हुई है आपकी टीम के साथ या आपके क्लब के साथ। तो उसमें मैं सुबह जैसे जाता था और 7 साढ़े 7 खत्म कर देता, उसके बाद आराम से यू हैव योर गुड ब्रेकफास्ट। आप अच्छी विद प्रोटीन्स, विद फ्रूट्स, विद मिल्क आप अच्छा ब्रेकफास्ट लो, जिसमें आप हैवी फैट्स ले रहे हो, जिसमें आप प्रोटीन्स ले रहे हो, कार्ब्स ले रहे हो, वो आप अच्छे से रखो, क्योंकि आपकी एक्टिविटी बहुत ज्यादा मांगती है। इसमें कुछ भी आपने तोल के नहीं खाना है, जो बॉडी को क्रेविंग हो रही है जस्ट गिव इट दैट थिंग। तो वही होता है उसमें, अच्छा खाना खाओ, एंड दैट 4 5 hours आफ्टर दैट आई वाज सिटिंग ऑन माय सिस्टम, आई वाज डूइंग माय थिंग्स। उसी टाइम पे मैं अपना काम कर रहा होता हूँ, एंड देन इन द आफ्टरनून आई टेक अ नैप फॉर 2 hours or 3 hours, and then again in the evening for 2 3 hours in I work, and like later part है जो evening का, अगर उसमें जैसे मैं कि मैं आयरन मैन मलेशिया का कर रहा था, या टफमैन की जो ट्रायथलॉन चंडीगढ़ वाली थी, ये हार्ड रेसेस थी, इसमें अपने आप को पुश करना था, तो उस टाइम में थोड़ी मैं इवनिंग में भी एक्टिविटीज एक ऐड कर लेता था, जस्ट टू कीप योर सेल्फ मूविंग। तो देन अगेन इन द नाइट यू स्लीप फॉर 5 to 6 hours, so the whole थिंग इज दैट एटलीस्ट यू शुड बी स्लीपिंग ऑफ 8 to 10 hours, जिसमें आप अपना जो रात का नींद है, अगर आप मॉर्निंग में एक्टिविटीज कर रहे हो तो 10 11 बजे अगर आप सोते हो, तो आपको सुबह 4 साढ़े 4 तक सिर्फ 5 या 6 घंटे ही मिलते हैं, एंड दैट इज नॉट इनफ इफ Hmm. यू आर वर्किंग आउट। सो दिस इज टू ऑल द एथलीट्स या फ्रेशर्स या एक्सपीरियंस्ड भी काफी ज्यादा हैं जिनको ऑलरेडी पता है, एंड सबको 8 या 10 घंटे की नींद चाहिए। अगर आप वन गो में नहीं ले सकते हो, आप दोपहर में भी सो, बिकॉज Absolutely. these three are the main things which is like always आप देखते भी हो, जगह जगह लिखा होता है कि just rest, train and repeat. So these are the thing, and obviously the third thing is diet also you can consider कि अच्छा खाओ, बहुत ज्यादा सो, जितना हो सकता है आप रिलैक्स करो, और ट्रेनिंग भी बहुत अच्छी करो। अगर आप ये चीज तीनों चीजें करते हो तो डेफिनेटली आप, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप फर्स्ट आओगे या आप बहुत अच्छा करो, लेकिन जो आपके जो गोल्स हैं वो आप उसको Hmm. आप कंप्लीट नहीं करोगे, लेकिन आप उसको सरपास कर जाओगे, आपकी एक्सपेक्टेशन उससे बेटर होगी। बिकॉज ये चीजें अगर आप मास्टर कर लेते हो, चीजें आप कॉन्कर कर लेते हो, तो जो आपका गोल सेट है वो कुछ भी नहीं है, इट्स जस्ट कि वो रेस डे ही आपके लिए बस दिन काटने हैं आपने वो रेस डे तक, अदरवाइज यू आर डन। So, with that very important advice from Tapman Gauravdeep, train, rest, and repeat, or rest, train, repeat, along with nutrition, focus, discipline, and persistence. You need to ensure that you train your body for the right one day and you make the best out of it. Any last words for the audience, Tapman Gauravdeep? सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो भी है आप कोई भी गोल मतलब बड़ा नहीं होता, मेरे ख्याल से कोई भी गोल बड़ा नहीं है। आप अपना गोल सेट कीजिए, बिकॉज आई हैव पर्सनली एक्सपीरियंस्ड, एंड मतलब काफी चीजें हैं कि आप अगर छोटा गोल सेट करते हो तो वो छोटे में ही रह जाता है, आप बड़ा गोल दो। Hmm. यू जस्ट कीप यू जस्ट कीप द कॉन्फिडेंस इन दैट, ये होगा। एंड टाइम दीजिए, पेशेंस दीजिए। बाकी तो इंफॉर्मेटिव चीजें हमने बताई की थी हैं, जो टेक्निकल चीजें, दैट इज द फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट। एंड सेकेंडली इज द योर मेंटल थिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि यू मस्ट बी मेंटली स्ट्रांग। यू शुड बी डूइंग द मेडिटेशन एंड योगा, इससे आप मेंटली स्ट्रांग होगे, एंड फिजिकली तो आप वर्कआउट कर ही रहे हो। एंड थर्डली इज पेशेंस। तो ये तीन चीजें अगर आप मास्टर कर लोगे तो हर कोई
हर हर एक ये 3 चीजें करने वाला एक टफ मैन होगा, हर ये 3 चीजें करने वाला एक आयरन मैन होगा। जो भी गोल्स हैं मतलब इट्स एंडलेस एंड that could be achieved, and I thank you, Shivam and team Toughman, everyone. So you guys are giving a good experience, even on the ground and even virtually, and I hope कि जो भी ये Certainly. देख रहे हैं इंटरव्यू एंड उन लोगों को अगर मेरे जैसे कोई गोल्स हैं तो वो जरूर पूरे होंगे, बिकॉज आई एम ऑल्सो पर्सन हेलिंग फ्रॉम अ स्मॉल सिटी जहाँ पे पूल भी नहीं है, मेरे को बहुत दूर जाना पड़ता है स्विमिंग करने के लिए। आई हैव टू स्विम इन दिस एग्रीकल्चर सोर्सेज जिसमें हम वाटर सोर्सेज होते हैं हमारे, तो काफी Hmm. चैलेंजेस हैं लेकिन बहुत अचीवेबल है इफ यू मास्टर ऑल द थिंग्स व्हिच वी हैव डिस्कस्ड हियर। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच। So dream big, achieve them, and always be greedy. यस, Thank you so much, Stefan Gauravdeep, for your time and for your wise advice to all the budding runners and aspiring triathlon athletes and finishers. Thank you for your time. थैंक यू टीम टफ मैन।